So dear students, we have read up to here that she looked herself in the mirror and carefully and critically. Now, if Jim does not kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he will say I look like a Coney Island chorus girl. तो what is she thinking that अगर Jim मुझे नहीं kill करता है, if Jim does not kill me, शी सेड टू अपने आप से कहती है, बिफोर ही टेक अ सेकेंड लुक एट मी, और जैसे ही वो मुझे देखेगा वो मुझसे कहेगा आई लुक लाइक अ कोने आइलैंड कोरस गर्ल. कोरस मीन्स डेली वर्क. जो कोने आइलैंड इज द नेम ऑफ अ प्लेस. सो कोने आइलैंड में जो गर्ल होती हैं उस तरह बिल्कुल तुम लग रही हो. शी वॉज थिंकिंग डेट जिम विल से लाइक दिस, बट वट कुड आई डू, मैं क्या कर सकती थी. ओह वट कुड आई डू विद $1.87 $187 के साथ मैं क्या कर सकती थी. At 7 o'clock the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove hot and ready to cook the chops. Now it is 7 o'clock and Jim is near to come and coffee was made. Coffee बनाई जा चुकी थी. Frying pan was ready for cooking the chops. Okay. Jim was never late. Jim कभी लेट नहीं होता था. Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table. So she in hand, her hand chain was there and she sat on the corner of the table near the door that he always entered, जहाँ से Jim हमेशा आता है. Then she heard his steps on the stairs. Then she heard the steps of Jim on the stairs and she turned white for just a moment. Means she becomes nervous हो जाती है. She had a habit of saying little silent prayers, और कभी कभी वो silent prayers जब भी when she felt nervous, okay, तो she had silent prayers और prayer करती है भगवान से. ठीक है. Now this time she is praying that she whispered, वो कहती है, whisper यानी speak softly and slowly, प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रीटी. की प्लीज गॉड उससे ऐसा ही सोच कि वो जिम ऐसा ही सोचे कि मैं अब भी सुंदर लग रही हूँ. तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डिड शी विस्पर, क्या विस्पर करती है, क्या फुसफुसाती है, क्या स्पीक स्लोली. प्लीज गॉड मेक हिम थिंक कि उससे वो अब भी यही सोचे कि मैं अब भी सुंदर हूँ. आई एम स्टिल प्रीटी. ओके. So the door opened and Jim stepped in. Door open होता है, Jim आता है and closed it. He looked thin and very serious. Now Jim is looking very thin, पतला and very serious. Poor fellow, बेचारा. He was only 22. He is only 22 years old and to be burdened with the family. Now he has many responsibilities of his family. He needed a new overcoat and he was without gloves. Means they were very poor. Jim needed a new ओवरकोट, उसे एक ओवरकोट चाहिए था एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स, और उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे. जिम स्टॉप इनसाइड द डोर. हिज आईज वर फिक्स्ड अपॉन डेला. सो ही वॉज इनसाइड द डोर एंड ही वॉज लुकिंग टू डेला एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन दैम दैट शी कुड नॉट रीड. बट व्हेन जिम लुक्ड एट डेला देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन देम. They both were looking to each other that she could not read, but Della was not able to read Jim's face. What kind of expression Jim was giving, it terrified her. Because of that expression she was completely terrified. डरी हुई थी. It was not anger, nor surprise, nor disapproval. कि जिम के फेस में ना ही गुस्सा था, ना ही सरप्राइज था, ना किसी चीज की डिसअप्रूवल थी, मनाही थी, ना कोई डर था. नॉर एनी ऑफ द कोई भी इमोशन दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, जिसके लिए वो तैयार थी. डेला को ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था. ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्सली. वो उसे लगातार देख रहा था. विद डेट पेकुलियर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. उसके फेस पे वो एक्सप्रेशन देखकर. पेकुलियर वेरी स्ट्रेंज, जो कि समझ नहीं आ रहा था दैट व्हाट डज ही थिंक. नेक्स्ट, डेला wriggled off the table and went for him. डेला moved slowly to Jim. Okay, wriggled off, उठना धीरे धीरे टेबल से. And she went to Jim. Jim darling, she cried, don't look at me that way. कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो. Okay, so she was saying कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो. Don't look at me that way. I had my hair cut off
कि मैंने अपने बाल कटा लिए, एंड सोल्ड बिकॉज आई कुड नॉट हैव लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ, कि मैं नहीं रह सकती थी कब, क्रिसमस के दौरान, विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट, तुम्हें एक प्रेजेंट, तुम्हें एक गिफ्ट दिए बिना, इट विल ग्रो आउट अगेन, कि मेरे बाल फिर से आ जाएंगे, यू वॉन्ट माइंड विल यू, तुम बुरा नहीं मानोगे, क्या तुम मानोगे, आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे ऐसा करना ही पड़ा, माई हेयर ग्रोज ऑफली फास्ट, कि मेरे हेयर बहुत फास्ट उगते हैं, से मैरी क्रिसमस, और वो क्या कहती है, मैरी क्रिसमस जिम, एंड लेट्स बी हैप्पी, चलो हम हैप्पी रहते हैं, यू डोंट नो व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गोट फॉर यू, सो डेला इज सेइंग, कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लेकर आई हूँ, यू हैव कट ऑफ योर हेयर, so we have read up to here, you have cut off your hair, asked Jim laboriously, laboriously वो पूछता है क्या तुमने अपने बाल कटा लिए, laboriously मीन्स बड़ी ईमानदारी से, पूरी कि भाई सीरियस होके, कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, यस, क्या कहती है कि हाँ मैंने कटवा दिया और उसे बेच दिया, सेड डेला, डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल, क्या तुम मुझे ऐसे नहीं पसंद करते, एनी हाउ, कोई बात नहीं, आई एम मी विदाउट माई हेयर, कि ये मैं हूं, मैं बिना अपने बालों के, अरंट आई, क्या मैं नहीं हूं, ओके, जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, वो एकदम से रूम की तरफ क्यूरियसली देखता है, यू से योर हेयर इज गॉन, वो पूछता है कि तुम्हारे हेयर चले गए हैं, ही सेड विद इन एयर ऑलमोस्ट ऑफ इडियसी, कि बार बार ऐसे बेवकूफ़ों जैसी वो हरकत करता है, यू नीड नॉट लुक फॉर इट, सेड डेला, डेला कहते कि तुम बालों को मत देखो, इट इज सोल्ड, वो बेचे जा चुके हैं, आई टेल यू सोल्ड एंड गॉन, मैंने तुम्हें बताया है ना कि वो बेचे जा चुके हैं, टू इट्स क्रिसमस ईवे बॉय, कि चलो ये क्रिसमस फेस्टिवल है, बी गुड टू मी, चलो अच्छे से रहते हैं, फॉर इट वेंट फॉर यू, वो सब हो चुका है, जो जा चुका है, मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड, कि हो सकता है मेरे जो हेयर्स थे वो नंबर में थे, शी वेंट ऑन विद सडन सीरियस स्वीटनेस, और ऐसा कहते हुए स्वीटनेस के साथ बोलती रहती है, बट नो बडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू, कि मेरे बाल तो नंबर हो सकते थे, मेरे बालों की गिनती थी, लेकिन नो बडी कुड एवर काउंट माई लव, लेकिन मेरा लव जो तुम्हारे लिए है उसकी कोई गिनती नहीं है, ओके, शेल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम, क्या मैं खाना बना लूँ, चॉप्स ऑन मीन्स जो कटिंग उसने करके रखी है वेजिटेबल की, क्या वो उसे बना ले, जिम ड्रू अ पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल, अब जिम क्या करता है, देखो जिम ने एक पैकेज निकाला अपने ओवरकोट से, एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल, और टेबल के ऊपर फेंक दिया, डोंट मेक एनी मिस्टेक डेला, ही से, कि इस तरह की गलती की, वो कहता है, ही सेड, जिम कहता है कि तुम मेरे बारे में गलत मत सोचो, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम अब अच्छी नहीं लग रही हो, अब सुंदर नहीं लग रही, नहीं नहीं, तुम ऐसा मत सोचो, मेरे बारे में गलत मत सोचो, ही सेड अबाउट मी, बट इफ़ यू विल अनरैप दैट पैकेज, लेकिन वो कह रहा है कि अगर तुम इस पैकेज को खोलोगे, यू मे सी वाई यू हैड मी गोइंग अ वाइल एट फर्स्ट, कि तुम मुझे, कि मैं तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा था, देखो वो क्या कहता है कि डेला मुझे गलत मत समझो, ही सेड, वो कहता है अबाउट मी, बट इफ़ यू, लेकिन जब तुम इस पैकेज को ओपन करोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या हुआ है, वाइट फिंगर्स एंड निबल टोर एट द स्ट्रिंग एंड पेपर, सो वाइट फिंगर्स एंड निबल टोर, ओके, तो जो वो है डेला उसको टच करती है पैकेट को, एट द स्ट्रिंग एंड पेपर, एंड देन एन एक्स्टिक स्क्रीम ऑफ जॉय, एंड देन, तो एकदम से उसे महसूस करती है, वो खुश हो जाती है, सडनली स्क्रीम करती है, शाउट करती है खुशी से, जॉय से, एंड देन अल्लास, अल्लास इज द एक्सप्रेशन वर्ड फॉर उदासी, सैडनेस, ओके, सैड होते हैं तब हम ये वर्ड कहते हैं अल्लास, तो एकदम से पहले तो वो बहुत ही एक्स्टिक स्क्रीम देती है, एक्स्टिक स्क्रीम यानी खुशी से चिल्लाती है, लेकिन बाद में वो क्या कहती है, अल्लास, ए क्विक फेमिनाइन चेंज टू हिस्टेरिकल टीयर्स एंड वेल्स, इस तरह वो कहते हुए रोना शुरू कर देती है, क्विक फेमिनाइन चेंज, जैसे कि लेडीज रोती हैं, हिस्टेरिकल मीन्स बुरी तरीके से रोना शुरू कर देती है, नेसेसिटेटिंग द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द कंफर्टिंग पावर्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लैट, ऐसा लग रहा था कि सारी ज़रूरतें, नेसेसिटी द इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट ऑल द कंप्लीटिंग, कि अभी इतना रो रही थी वो कि ऐसा लग रहा था कि इसे जल्दी से जल्दी चुप कराना
चाहिए, अगर भगवान कही है तो जल्दी से चुप कराए। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक, क्या था उस पैकेज में? चलो लेट्स मूव अहेड। For there lay the combs, the set of combs that Della had worshipped long in a Broadway. For there lay the combs, उस पैकेज में क्या था? The combs, combs थे उसके बालों के लिए। The set of combs that Della had worshipped long, जो बहुत ही लंबे समय से वो चाह रही थी, उसके लिए वो कोम लाया था जिम। ब्यूटीफुल कोम थे, प्योर टोर्टोइस शेल के वो बने थे विद जेवल्ड रिम्स, बहुत ही सुंदर ज्वेलरी के साथ। दे वर एक्सपेंसिव कोम्स, बहुत ही महंगे थे। शी न्यू एंड हर हर्ट हैड सिंपली क्रेव्ड एंड अर्नड ओवर देम विदाउट द, और उसका जो हर्ट था वो बिल्कुल इसकी इच्छा कर रहा था और बहुत दिनों से वो उसको चाहती थी ऐसे कोम लेना। होप ऑफ पोजेसन, वो चाहती थी कि ये मेरे पास हो। एंड नाउ दे वर हर्स, लेकिन अब वो उसके हैं। बट द ट्रेसिस हेयर दैट शुड हैव अडोन, जो कि उसके साथ कोम करना चाहती थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थे, वो अब उसके पास नहीं है। कोवेटेड एडोनमेंट वर गोन, कोवेटेड जिस पर अडोनमेंट करना था, ब्यूटीफुल कोवेटिंग करनी थी, वो अब जा चुके हैं। But she hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, लेकिन she hugged, उन्हें कोम को अपने गले से लगा लिया, and she was able to look up with dim eyes, और जिम की तरफ देखती है, स्माइल करती है और कहती है my hair grows so fast, जिम कहती है कि मेरे बाल बड़ी जल्दी बढ़ते हैं। And then Della leaped up like a little saint कैट एंड क्राइड, ओहो, अब डेला क्या कर रही है, एकदम से थोड़ा सा उठती है और रोना शुरू कर देती है। जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट, जिम ने अभी तक नहीं देखा था कि डेला अपने बाल बेचकर उसके लिए क्या लाई है। शी हेल्ड इट आउट टू हिम ईगरली अपॉन हर ओपन पाम, तो वो क्या करती है, शी हेल्ड इट आउट टू हिम, वो उसे देती है, ईगरली बहुत ही इच्छुक होकर, अपॉन हर ओपन पाम उसकी हथेली पर रखती है। द डल प्रीशियस मेटल सीम टू फ्लैश, लेकिन जो मेटल था, जो वो चेन उसके लिए लाई थी, वो अब जिम को देती है। जो वो मेटल था वो चमक रहा था विद द रिफ्लेक्शन टू हर ब्राइट एंड अर्डेंट स्पिरिट, अर्डेंट मीन्स बहुत ही कभी ना ख़त्म होने वाली, पैशनेट बहुत ही इच्छा के साथ दी जा रही थी जो स्पिरिट, तो उसके साथ वो मेटल की चेन उसके हाथ पर रखती है। इजंट इट डैंडी जिम, वो क्या कहती है, इजंट इट डैंडी, क्या डैंडी मीन्स वेरी एक्सीलेंट, क्या ये बिल्कुल सही तोहफा नहीं है तुम्हारे लिए जिम? आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट, मैं पूरा शहर घूमी उसे ढूंढने के लिए। यू विल हैव टू लुक एट ए टाइम 100 times a day नाउ, लेकिन अब तुम टाइम देख सकते हो दिन में 100 बार। बी गिव मी योर वॉच, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स, सोनी तुम मुझे अपनी वॉच दो, मैं इसे चेन लगाना चाहती हूँ। तो देखो दोस्त, डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा है कि जिम ने अपनी वॉच, देखो क्या हुआ है कि डेला ने अपने हेयर को बेच दिया है, किस चीज़ के लिए, जिम की वॉच के लिए चेन लानी थी, ठीक है। और जिम ने अपनी वॉच को बेच दिया है क्योंकि वो डेला के हेयर के लिए क्या चाहता था, कोम्स चाहता था, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, वो वॉच के लिए पूछती है। सो दिस इज इन दिस वीडियो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वीडियो।